Hello, everyone. Welcome back. This is about my fourth session for exception handling. I covered basic things in last three sessions. Okay, so I request you all. Okay, if anyone is not, who didn't see my previous video regarding exception handling, just go through it so that you can get clarity in these topics which I'm going to cover right now. This is the thing that we have discussed in previous sessions. Let me quickly go through it. What is exceptions and the types of exceptions, maybe possibly errors, then class hierarchy, control flow, how different statements are getting executed when you write something in a try catch block. This is the case 2, case 3, case 4. So what we need to take from this is that the conclusions are if you write something in a try block, and that exception will occur in that particular try block, that the control will directly move to the catch block, right? So it is recommended that you should write minimum code as possible as minimum code in a try block, so that when some exception occurs, the rest of statement will not affect to that, right? So it is recommended to only write a risky code inside a try. Then we need to continue our discussion with this. Okay, so there are total 5 keywords which is there in Java. Which through these keywords, the 5 keywords, mainly these 5 keywords will help us to have an exception handling. Okay, so we know basically what is exception, what is the purpose of exception handling, and what is the meaning of exception handling. Meaning, matlab, to provide an alternative way of in case if the statements goes wrong or something, some unwanted or unexpected event occur, right? So there are basically 5 keywords: try, catch, finally, throws, and throw keyword. So this is the important thing that you need to take care or you need to consider. So what is try block? First thing, a try block is basically all statements that are likely to raise an exception. All the statements you can, as a programmer, you can easily identify. Okay, but these are some of the statements are like if you write that statement, it may possibly generate an exception. Okay, not every time, but sometimes it may possibly generate exception, right? So you need to identify those kind of statements, and what you will do is, as a programmer, you will write that code into a try block. So if something goes wrong, that can the exception will be thrown, and it will be cached. So what you write in a try block? Try block, you write something which possibly throws an exception or arise an exception. So if you go with the definition that all statements that are likely to raise an exception at runtime or kept in try block, these are the statements we will get in the try block. This block will detect an exception and throw it. It will be handled by a kept block. So see, any statements will possibly raise an exception. If you have written that statement inside the try block, then only that try block will throw an exception. Otherwise, if you write something outside of the try block, the statement, so that will cause an error, not an exception. Exception मतलब जो भी error है, अगर आप try block में लिखे, that means you are writing that statement to handle, right? अगर possibly future में exception throw कर रहा है वो, तो उसको हैंडल करने के लिए you are writing something in a try block. So if you have written that code in a try block, then only it will throw an exception. Otherwise, बाकी हमने जैसे previous session में देखा था कि statement number 5 which was written on outside to the try and catch block. अगर उसमें से अगर प्रॉब्लम आ रहा है या एक्सेप्शन हो रहा है तो इट विल ऑलवेज abnormally terminated program, right? सो ट्राई ब्लॉक क्या करेंगे हम कि भी जो भी ऐसे स्टेटमेंट्स जो पॉसिबली एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं, विल राइट दैट स्टेटमेंट्स इन द ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक. सो दिस ब्लॉक्स टेक्स करेक्टिव स्टेप्स व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन. एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब क्या करना कि भी एक्सेप्शन इज अ क्लास इन जावा. there are number of सब क्लासेस यू कैन से कि जावा में अलग अलग सब क्लासेस है एक्सेप्शन के. Some of the classes are popular or well-known classes, like some you may have faced, like when you try to access some, if you work with array and when you try to access some index which is not available in the array. Let's say 5 का array बनाया और आपको array of 7 आपने access करने को try किया है, so ये वो एक exception throw कर रहा है, आउटपुट पे एक error दिखा रहा है कि array index out of bound, right?
So array index out of bound, that is a kind of exception ना, एक एक्सेप्शन है. व्हाट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर वो एक्सेप्शन है, दैट मींस वो एक्सेप्शन उस नाम का एक क्लास बनाया है ऑलरेडी, इनबिल्ट क्लास बनाया गया है जो एक्सेप्शन कंसीडर होगा कि भाई इट्स एन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, arithmetic exceptions. Now, this number of list of exceptions, inbuilt exceptions are there. We will be going to discuss each of them. Okay. So, see, जो एक्सेप्शन जो भी है, सो एक्सेप्शन थ्रो होना उसका मतलब ये होगा कि भाई द कोड दैट यू हैव रिटर्न इनसाइड ए ट्राई ब्लॉक, लेट्स से अगर डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो आप, ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिखा है, सो अगर डिवाइड बाय जीरो हो रहा है ना, तो एट दैट टाइम एक एक्सेप्शन थ्रो होगा. एक्सेप्शन थ्रो होना उसका मतलब क्या होगा कि भी डिवाइड बाय जीरो इज अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन. डिवाइड बाय जीरो इज काइंड ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन. तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो इनबिल्ट क्लास होगा, वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के वो थ्रो करेगा, राइट. सो ट्राई ब्लॉक में अगर इफ इनबिल्ट एक्सेप्शन है, तो इन कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के वो थ्रो करेगा. तो इफ डिवाइड बाय जीरो इज देयर, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन ऑफ अरिथमेटिक क्लास, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास. तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा. ऑब्जेक्ट को कैच करना मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो बनाया वो थ्रो किया ना, अगर उसको हम करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक में देखें, विल सी कि भी कैच ब्लॉक में किस तरह से हमने एक्सेप्शन ई लिखा था, तो ई इज अ वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल में वो कैच हो जाता है, राइट. सो दैट इज व्हाट एक्सेप्शन कॉल्ड कैच हो गया वो. सो उसके लिए जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहे हैं ना, उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक लिखते हैं. So catch block, this block takes corrective steps when exception is thrown. Exception is thrown उसका मीनिंग ये हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट या कंपाइलर जेवीएम ने इनबिल्ट में अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है या डिवाइड बाय जीरो से दे रहे हैं, या अगर हम इफ वी ट्राई टू एक्सेस एरे ऑफ 7, 5 का एरे बनाया और साथ में इंडेक्स से आप कुछ लोकेशन एक्सेस कर रहे हो, सो जब एक्सेप्शन वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रहा है ना, एट दैट टाइम कंपाइलर भी थ्रो एन एक्सेप्शन कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उसका एक एक्सेप्शन का थ्रो करके भेजेगा, भाई उसका ऑब्जेक्ट बना के वो थ्रो करेगा. वो जो ऑब्जेक्ट बना के थ्रो हो रहा है ना, उसको हमें कैच करना है टू द करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक. सो वी नीड टू राइट कैच ब्लॉक फॉर द रिस्पेक्टिव एक्सेप्शन, राइट, जो पॉसिबली हो सकते हैं उसके हिसाब से. सो इट प्रोवाइड्स सुटेबल मैसेज फॉर द यूजर. अगर कैच ब्लॉक में नॉर्मली हम क्या करेंगे कि एक्सेप्शन कैच लिख दिया और उसके अंदर फिर विल राइट सम स्टेटमेंट. ओके, सो अगर नोटिफाई भी कराएगा कि भाई ये एक्सेप्शन शो हो रहा है या यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ लोकेशन व्हिच इज नॉट देयर, और समथिंग काइंड ऑफ मैसेज हम कैच ब्लॉक में लिख सकते हैं. सो उससे मतलब क्या होगा कि भाई यूजर विल कम टू नो अबाउट द एक्सेप्शन कि भाई देयर इज समथिंग गोज रॉन्ग व्हिच इज थ्रोइंग एक्सेप्शन. सो प्रोग्राम स्टॉप नहीं करेगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम आपका स्टॉप नहीं होगा, लेकिन यूजर और प्रोग्रामर will get notified कि भाई this is something going wrong, so I need to take care of it, right. So try block can follow multiple catch blocks. That means what, you can write one try block, and for that try block let's say there are 5 statements, अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं. इस टाइप के स्टेटमेंट हमने लिखे, तो पहला स्टेटमेंट में लिखा है कुछ समथिंग which is divide by 0, राइट. दूसरे में array index में लिखा है, तीसरे में ऐसी कोई URL दिया है जहाँ पे फाइल आप स्पेसिफाई कर रहे हो. फाइल स्पेसिफाई कर रहे हो तो फाइल नॉट फाउंड मतलब जब रन टाइम पर जो एक्सेस करेगा तो इट मे पॉसिबल कि फाइल इज नॉट अवेलेबल देयर, सो इट विल पॉसिबली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, राइट. सो तीनों स्टेटमेंट लिखोगे आप, मान लो समटाइम्स वो तीनों अलग अलग टाइप के होंगे कि पहले में वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, दूसरे में एरे इंडेक्स करेगा, तीसरे में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन करेगा. सो टू सपोर्ट दैट थिंग यू कैन राइट one try block where 3 statements will be there, let's say, और उसके लिए 3 corresponding catch block होंगे. 3 corresponding catch block. फर्स्ट catch block उसके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे हम जो पैरामीटर जो पास करेंगे उसके अंदर arithmetic exception a, इस तरह से कुछ लिखेंगे. दूसरा catch block बनाएंगे उसके अंदर will write array index out of bound e, एंड तीसरा जो बनाएंगे find not found exception e. ओके, सो तीनों अलग अलग होंगे. सो तीनों में से कौन सा है जो अगर arithmetic exception थ्रो हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो रहा है, तो दैट विल बी कॉज्ड बाय अरिथमेटिक कैच जो ब्लॉक है जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक बनाया है वो. अगर एरे इंडेक्स बनाया है तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है वो तीसरा नंबर. सो विद दिस एग्जांपल विल ट्राई टू डिस्कस, क्योंकि एग्जांपल से ये है जो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करते हैं. तो सी थियरी इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने थोड़ी बहुत किया, हमने ये भी जो डिस्कशन हुआ
अगर ये प्रोग्राम एक बेटर वे में समझना है तो वी नीड टू गो थ्रू द थियरी, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट डिफिकल्ट दैट मच. सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल वेयर एक क्लास बनाया है वेयर ट्राई कैच डेमो इज अ क्लास. लेट मी यूज इट. सो दिस इज व्हाट एक क्लास बनाया है जिसके अंदर देयर इज अ मेन मेथड. नाउ मेन मेथड में देयर आर थ्री वेरिएबल्स a b एंड c. तीनों की वैल्यू देख लो, a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 3. अभी प्रोग्रामिंग में देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सिंटैटिक एरर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट. एंड रिजल्ट नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं हमने, इनकी जो रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2. नाउ ये जो स्टेटमेंट लिखा आपने, है ना, रिजल्ट 1 इक्वल टू a बाय b माइनस c ब्रैकेट में लिखा. ये जो स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है इसमें, ट्राई ब्लॉक में लिखा है. ट्राई ब्लॉक में क्यों लिखा है कि अगर हम ट्राई के बाहर लिखते हैं तो भी कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हो सकता है उसमें, ये सिंथेटिकली स्टेटमेंट इज राइट. बट ट्राई में लिखा है इसलिए बिकॉज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन. अगर कहीं कुछ डिवीजन कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो डिवाइडर में लास्ट में जो अपना डिवाइडर होता है अगर वो जीरो हो गया ना तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. या डिवाइजर से सो इस स्टेटमेंट को हमने, द रीजन व्हाई वी रिटर्न दिस स्टेटमेंट इनसाइड ट्राई ब्लॉक इज दिस स्टेटमेंट पॉसिबली जनरेट एन अरिथमेटिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन. अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक डिवाइड बाय जीरो विल बी कंसीडर्ड एज एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन. तो उसको हैंडल करने के लिए, इस टाइप के एक्सेप्शन जो हो गए ना, उसको हैंडल करने के लिए किसी ने इनबिल्ट क्लास बनाया है दैट इज ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन. फाइन. सो वी हैव रिटर्न दिस स्टेटमेंट रिजल्ट इक्वल 1 इक्वल टू a बाय b माइनस c. नॉर्मल केस में अगर b और c की वैल्यू अलग अलग है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट व्हेन b और c दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई, सी हमने इंटेंशनली यहाँ पे जीरो a बाई जीरो नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है b बाई c लिखा है. सो ये प्रोग्राम है, अगर नॉर्मल प्रोग्राम में b और c की वैल्यू अलग अलग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन एट सम टाइम कुछ ऐसे इंस्टेंस में क्या होगा कि भाई b और c दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, देन उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. So it will try to divide something like a, that is 30 divided by 3 minus 3, that will become 3 minus 3 become 0. So ultimately you are trying to divide 30 by 0, है ना. So that will possibly throw some exception, it create exception होगा. Okay, so इस टाइप का प्रोग्राम जब लिखते हो ना तो you need to take care of this statement, right. So it's a risky code, we possibly create an exception, और अगर इसको exception को handle नहीं करते आप तो आपका प्रोग्राम abnormally तबीयत हो सकता है. तो हमने क्या किया इसमें कि वी हैव रिटन समथिंग इन अ ट्राई ब्लॉक, एक स्टेटमेंट लिखा है ट्राई ब्लॉक और उसके करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक लिखा है. अगर पॉसिबली अगर 3 की वैल्यू 5 है और 2 की c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 2 है, और 5 minus 2 that is what 3, राइट. सो 30 डिवाइड बाय 3 तो उसका आंसर आ जाएगा नॉर्मल, तो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन इफ वी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट 3 minus 3 0, सो ये स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा. पहले तो सबसे पहले क्या होगा कि दिस विल राइज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन राइज होगा, और उसको जो एक्सेप्शन राइज होगा यहाँ पे ना, सो लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल कि भाई एक एक्सेप्शन, ये जो क्लास है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा. लेट मी उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा कि भाई न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन किस तरह से लिखते हैं, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल में जाके कैच हो जाएगा ना, बिकॉज वी हैव रिटर्न अरिथमेटिक एक्सेप्शन ए. सो ये कैच ब्लॉक जो बनाया हमने, वो कैच ब्लॉक इसके लिए बनाया है कि जो इसका जो एक्सेप्शन होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट. दिस ये जो स्टेटमेंट है ना उसमें से कंपाइलर क्या करेगा या जेवीएम जो अपना वो क्या करेगा, इट विल थ्रो एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास जो बनाया उसका ऑब्जेक्ट बना के वो थ्रो करेगा. वो जो ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है ना, वी नीड टू कैच दैट ऑब्जेक्ट. क्योंकि कैच कैसे कर सकते हो इन दिस सेंस कि भाई अगर रेफरेंस वेरिएबल में उसका रेफरेंस हम होल्ड करवा रहे हैं दैट मींस वी आर कैचिंग इट, है ना. इस तरह से अभी एज ऑफ नाउ वी विल कंसीडर लाइक दिस. सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन AE इज अ वेरिएबल जो यहाँ पे न्यू कीवर्ड करके अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगा, उसको हम AE वेरिएबल में कैच कर रहे हैं. सो करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच हो जाएगा, और मैच होने के बाद दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. डिवाइड बाय 0, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड समथिंग बाय 0, तो AE इज अगेन अ वेरिएबल है, उसको प्रिंट करा है तो वो मैसेज प्रिंट करेगा. सो लेट मी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. सेम प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. लेट मी ओपन द फर्स्ट नेट पिन एक्चुअली इट्स नॉट. So meanwhile we discuss something.
सो सेम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता हूँ नेटबिट से, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, result 2 equal to what? Result 2 equal to, in this case result 2 equal to a by b plus a, so there will be no possibility, हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम प्लस ही कर रहे हैं, so every time there is no possibility to get 0, right? So this statement we have written outside to the catch block, but this statement is a risky statement, so we need to write it in inside the so system.out.println result with कर रहे हैं, right? So I hope you are getting something from this example. Exception, try block, catch block, and अगर try में कोई possible exception थ्रो रहा है तो उस class उस exception थ्रो ना उसका मतलब क्या हुआ basically पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर है, अगर इनबिल्ट क्लासेस और इनबिल्ट स्टेटमेंट जो हमने बनाए इनबिल्ट क्लासेस अगर है तो एक्सेप्शन थ्रो ना उसका मतलब याद रखिए पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो क्लास होगा, लेट्स से डिवाइड बाय जीरो के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अगर इंडेक्स एरे का कुछ फाइंड कर रहे हो, ट्राई टू एक्सेस कर रहे हो कि भाई 5 का एरे हो 7 की एक इंडेक्स ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने का, तो इट विल राइज दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट विल राइज टू द अरिथमेटिक नॉट अरिथमेटिक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ओके। सो अगर वो स्टेटमेंट होता है यहाँ पे तो यू वुड हैव रिटर्न इट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एई, तो उसका ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, उसका ऑब्जेक्ट थ्रो होता है और उसको कैच होते हैं, सो that will that is different. So you can write a multiple catch block with a try block, so you'll be having a one try block only and where you can write multiple catch block, इस तरह से लिख सकते हो ये exception type 1. So let's assume कि भाई पहला स्टेटमेंट है हमारा, the statement is the first statement is for let's say arithmetic exception राइज कर रहा है, दूसरा array index कर रहा है, तीसरा फाइल नॉट फाउंड कर रहे हैं, सो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेप्शन मल्टीपल कैच ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक से मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, सो array index होगा, देन यहाँ पे array index आउट ऑफ बाउंड इस तरह से लगेगा e1, देन अगर अरिथमेटिक टाइप का होगा तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन e2, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन e3, अगर थर्ड कैच बनाएंगे, सो अगर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेट्स से फॉर array index मान लो अभी, सो if there is no exception in array index then no problem, this catch block is for arithmetic array index out of bound is not going to be executed, but if something will there in statement 2 is for arithmetic exception divide by 0 कर रहा है और exception throw कर रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए second number का catch जो block कर रहा है वो execute, right? So you can write like this, you can write a multiple catch block with one try block. Throw keyword. Now what is the use of throw keyword? Throw keyword is used to throw an exception. Exception throw करने के लिए यूज करते हैं, राइट? सो अभी तक हमने एरे इंडेक्स और अभी जो प्रोग्राम देखा लास्ट प्रोग्राम देखा उसमें हमने एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, कंपाइलर ने थ्रो किया है लेकिन हमने इंटेंशनली थ्रो नहीं किया, राइट? बट हमें अगर समटाइम्स क्या होता है कि विल बी, अगर देखोगे आपकी विल बी हैविंग आवर ओन एक्सेप्शंस, हम हमारे खुद के एक्सेप्शन बनाएंगे क्योंकि भाई इफ समथिंग गोज रॉन्ग फॉर अस एज अ प्रोग्रामर, ये सारी चीजें जो अगर इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं दैट इज एक्सेप्शन फॉर अस, राइट? सो विल राइट दोस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो उसके लिए वी नीड टू मैन्युअली थ्रो दैट एक्सेप्शन। सो बेसिकली क्या होगा, हमने क्या कर सकते हैं कि भाई लास्ट एग्जांपल देखा हमने कि भाई इट इज दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, दिस स्टेटमेंट विल थ्रो एक्सेप्शन, राइट? सो द सेम स्टेटमेंट, लेट्स से थ्रो का यूज इस तरह से, थ्रो इज अ कीवर्ड, थ्रो इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। वी हैव अ सेम क्लास कॉल्ड थ्रो टेस्ट। नाउ एक टेस्ट मेथड है जिसके अंदर हमें क्या लिखा है कि वी हैव रिटर्न अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ट्राई ब्लॉक में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, स्टेटमेंट लाइक रिजल्ट 1 इक्वल टू a by b minus c इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, वी हैव इंटेंशनली थ्रो, ट्राई ब्लॉक में लिखा ही एक स्टेटमेंट ही ऐसा लिखा है व्हिच विल थ्रो देन एक्सेप्शन, एक थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट? सो टू थ्रो दिस मैन्युअली अगर आपको थ्रो करवाना है तो यू नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट थ्रो इज अ कीवर्ड, थ्रो लिखोगे उसके साथ व्हाट यू विल राइट इज यू विल राइट दिस स्टेटमेंट, ये देखो दिस इज व्हाट, ये स्टेटमेंट हम कब लिखते हैं व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, यू विल राइट अ न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास का नाम और ब्रैकेट, उसको हम कंस्ट्रक्टर कंसीडर करते हैं, राइट? सो new keyword with constructor that will create object of particular class, तो arithmetic exception का एक क्लास बनाएगा, throw keyword क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो बना है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, सो थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो थ्रो करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो थ्रो करेगा, और ये ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो थ्रो हो रहा है
वो थ्रो होके इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में ए ई वहां पे जाके वो कैच हो जाएगा। अगर हम मान लो हमने इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखा होता, तो ये जो ऑब्जेक्ट अरिथमेटिक एक्सेप्शन का थ्रो होता होगा ना, तो ए ई कैन नॉट कैच इट बिकॉज इट्स नॉट, ए इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ, अगर इन दैट केस ए विल नॉट बी एन variable, reference variable of array index out of bound. AE is can catch this because AE is a reference variable of arithmetic exception type, right? Okay, so just ये दिमाग में रखिएगा। एक्सेप्शन थ्रो होना उसका मतलब थ्रो कीवर्ड बैकग्राउंड में, हम अगर प्रीवियस केस की बात करें इस केस की, तो रिजल्ट में क्या हो रहा है कि कंपाइलर बैकग्राउंड में है ना, ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर रहा है, थ्रो कर रहा है न्यू कीवर्ड करके, न्यू कीवर्ड और उसके साथ है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर लगाया है, तो ऑब्जेक्ट बना के वो थोड़ी कर रहा है, बैकग्राउंड में यही होता है। इवन दो वी आर राइटिंग द स्टेटमेंट बट बैकग्राउंड में कंपाइलर सेल से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब जो तो जिस जिस उस टर्म में आ रहा है ना कि भाई अरिथमेटिक डिवाइड बाय जीरो दैट कम्स अंडर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो उसका क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो थ्रो होता है, थ्रो कीवर्ड उसका यूज करते हैं, फिर थ्रो कीवर्ड से हम थ्रो कर पाते हैं एंड उसको कैच करना होता है, राइट? तो करस्पॉन्डिंग कैच बुक हमने लिखा होता है जो विच विच कैच देती है, राइट? ओके, एंड कैच ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा, वो फिर यहाँ भी और वन मोर थिंग क्या होगा देखो, सेम AE हमने कैच किया। Now what is AE? AE is a object. AE is a reference variable which hold object of this throw जो यहाँ पे arithmetic exception का है। Now inside test method, what we are writing in this catch method, inside test method you have printing, simply printing this thing, and again one more statement that you are writing is so one more statement you are writing is again you are throwing inside a catch one more thing, you are throwing one more exception, तो throw कर रहे हो, throw कीवर्ड will throw this exception AE, तो यहाँ से वो थ्रो होके फिर कहा जाएगा, सो ये यहाँ पे यहाँ से जो थ्रो हो रहा है ना दैट विल बी कैच हियर, यहाँ पे वो कैच हो जाएगा। सो ये किस तरह से हमने लिखा है दैट विल हैव दिस टर्म बिकॉज दिस इज व्हाट आवर मेन मेथड में एक ट्राई ब्लॉक लिखा है, मेन मेथड में ट्राई ब्लॉक लिखा है, वो टेस्ट मेथड कॉल कर रही है, टेस्ट मेथड इज स्टैटिक मेथड ऑफ दिस क्लास, राइट? सो टेस्ट मेथड कॉल हो रही है, उसका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, वो थ्रो कर रहा है तो उसका कैच एग्जीक्यूट हो रहा है ना, कैच में से अगेन वो थ्रो कर रहा है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ट्राई ब्लॉक में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? अल्टीमेटली दिस ट्राई ब्लॉक में टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट करिए ना, तो फॉर दिस ट्राई ब्लॉक टेस्ट मेथड पॉसिबली थ्रो एन एक्सेप्शन, राइट? एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है टेस्ट मेथड, सो टेस्ट मेथड जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसको कैच करने के लिए उसको कैच यहाँ पे होगा, which कौन से टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बिकॉज टेस्ट इज डीलिंग विद द अरिथमेटिक थिंग, so it will possibly throw an arithmetic exception जो यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे जाके कैच हो जाएगा, और this statement will be this, so output of this statement this program will be first statement inside test, right? ये कहाँ से आया कि कैच ब्लॉक जो एग्जीक्यूट हुआ उससे, और दूसरा जो है ना the second लाइन वो प्रिंट हुई है यहाँ से ये स्टेटमेंट, क्योंकि टेस्ट में भी एक्सेप्शन टेस्ट कॉल किया तो टेस्ट मेथड कॉल हुई, उसने पॉसिबली एक्सेप्शन थ्रो किया, उसको अगेन थ्रो किया, और कैच में यहाँ पे जाके AE वहाँ पे कैच हुआ और सेकंड लाइन में ना प्रिंट हो गया। सो इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट AE अगर प्रिंट कर पा रहा है तो java.lang arithmetic exception नॉट प्रिंट, वो प्रिंट करेगा। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग, दिस कांसेप्ट। ओके, सो throw keyword, to understand properly what is the use of throw keyword we need to understand a call stack. Okay, so what I will do is I will cover this, I will prepare a separate video for the same, to what is call stack, what is the use of throw keyword, and what is the use of binary keywords. Okay, then different things which comes afterwards. Okay, so till for this video I think this is enough for you. In next lecture we'll discuss throws keyword, then some of the concept which is related with the finally and check unchecked exceptions, right? So thank you for watching.